Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again, and I am more than happy to meet you as many times as is possible and most definitely required. We are continuing with one of our theory subjects. Theory, if I was not very clear on that word, which is secretarial practice. Obviously, it's not applicable to everyone, so especially those who have taken maths are not going to be sitting for this particular lecture. Hey, but जिनको भी SP है secretarial practice, वो डेफिनेटली बैठ जाए और जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो समझ ले, और उसके बाद में जो मैं एक धनुष बाण आपको दूंगा वो आपको काम ज़रूर आएगा, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने के लिए। आज का हमारा मुद्दा आपको क्या सिखाने वाला है? ओके, फर्स्टली चैप्टर हमारा वही है, पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, एवरीथिंग वाज डन लास्ट टाइम. Today we take that chapter a little bit ahead. Okay, so one of the main things as far as corporate finance is concerned is capital. Capital वो पैसा है जो आपको, आपकी कंपनी को लगेगा क्या करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, which I hope आप समझते हो. Today we are concentrating on types of capital. Now I repeat myself, maybe in another subject or maybe in this subject itself later on in one of the chapters आपको ये सुनाई देगा types of share capital. Now I repeat, we are not getting into that, we are right now discussing कि types of capital क्या होते हैं. Okay, capital का मतलब क्या? पैसा. पैसा जो किसके लिए चाहिए, हमको बिजनेस चलाने के लिए चाहिए. ओके, दो टाइप का होता है. वन ऑब्वियसली जो ऊपर लिखा गया है, फिक्स्ड एसेट, एंड द अदर वर्किंग कैपिटल. ओके, फिक्स्ड से तो यू गेट एन आइडिया. हाँ, तो लॉन्ग टाइम के लिए जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल. मीनिंग इफ़ यू आर प्लानिंग, अगर आपका इरादा है एक गाड़ी खरीदने का, तो पैसे तो लगेंगे ना, वो है फिक्स्ड कैपिटल. क्यों? क्योंकि गाड़ी तो हर दिन नहीं खरीदने वाले, एक बार खरीदोगे, वो जो पैसा आपका था वो शोरूम में जाने के बाद में गाड़ी में चेंज हो जाएगा परमानेंटली. परमानेंटली मतलब मे बी 10-12 ईयर्स तक तो आप यूज़ करोगे ना गाड़ी को. बट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? अरे यार, गाड़ी खरीद लोगे
तो पेट्रोल नहीं डालना है। पेट्रोल एक ही बार डालोगे नहीं रे, पेट्रोल तो वो मेंटेनेंस का हिस्सा है, वो बार बार लगातार। फॉर अ कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल? Fixed capital means the money that is required by the company for a long time, long time. And working capital means the money that is required by the company for a short time. Normally working capital is 1 year. 1 year. Today I am not going to talk about working capital क्योंकि obviously ना फिर lecture बहुत लंबा हो जाता है. We are only concentrating on the concept of fixed capital. And in fixed capital, I am doing my best to explain to you कि fixed capital को क्या क्या डिटरमाइन करता है, कौन से फैक्टर्स है जो फिक्स्ड कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं. ना होल्ड ऑन, इफ यू आर कंफ्यूज, सर आप क्या डिटरमाइन बोल रहे हो, कि आपको कितना फिक्स्ड कैपिटल लगेगा. एवरी कंपनी वुड रिक्वायर द सेम फिक्स्ड कैपिटल? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. वो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, कंपनी के स्कोप पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है. तो आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको एक 2 व्हीलर खरीदना है, 2 व्हीलर, ओके, तो मे बी अ बाइक, चलो मैं स्कूटर की बात नहीं कर रहा, अ बाइक, विल you require the same money to buy that bike? No, because there are so many bikes in the market. अगर एक नॉर्मल हीरो होंडा वाली बाइक आप खरीदोगे, जो होंडा ने बनाई है, हीरो ने बनाई है, स्प्लेंडर नाम की, वेरी नॉर्मल बाइक, मे बी 50,000, 55,000, 60,000. थोड़ा KTM की तरफ से जाओगे, थोड़ा और महंगा, रॉयल एनफील्ड, तो मे बी 2 lakhs, 2.5 lakhs. But in India there are motorbikes which are available by a BMW company. तो वो बाइक itself 25 lakhs के ऊपर आती है. उसमें तुम अगर पार्ट्स जोड़ते जाओगे तो वो डबल कॉस्ट तो बनी जाएगी. सो होल्ड ऑन, इवन दो बाइक खरीदने के लिए जो पैसा लगता है वो है फिक्स्ड कैपिटल, बट देन वो सब कंपनीज के लिए सेम नहीं है. तो फैक्टर दैट डिटरमाइन फिक्स्ड कैपिटल इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग टुडे. तो आज का बाकी का लेक्चर जो होगा विल बी व्हाट इट सेज अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. कौन सी कंपनी को कितना फिक्स कैपिटल लगेगा, वो फिक्स्ड नहीं होता एक्चुअली ना, वर्ड फिक्स्ड है, बट हर कंपनी के लिए फिक्स कैपिटल बदलते जाता है. सो नेचर ऑफ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ बिजनेस? प्लीज रीड. मैन्युफैक्चरिंग industries, public utilities have to invest huge amounts of funds to acquire fixed assets. So hold on, what do you mean by manufacturing? Petroleum manufacturing, diesel manufacturing. What do you mean by public utilities? Indian Railways, Metro, these are public utilities. इनके लिए पैसेंजर्स तो बाद में आएंगे, बट क्योंकि इतने पैसेंजर्स आने वाले हैं मुंबई के BEST में, ओके, जो एक कॉमन मैन की गाड़ी है, ओके, इन 1 डे, इफ मैंने गलती नहीं किया है तो आराम से अराउंड 30-35 लाख पैसेंजर्स, 30-35 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं. सो आई रिपीट माई सेल्फ, सो इतने पैसेंजर्स के लिए एक बस में तो काम नहीं चलेगा ना, ऑब्वियसली नो. सो दे हैव अ फ्लीट ऑफ बसेस, दे हैव टू बाय एट द वेरी बिगिनिंग अ फ्लीट ऑफ बसेस, 100 बसेस, 150 बसेस, 400 बसेस. हे सिमिलरली फॉर द ट्रेन्स, बिकॉज अगेन lakhs and lakhs of passengers, so they can't buy one train. तो इनके फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जो पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक की सेवा करने में, बिकॉज पब्लिक ही एटलीस्ट इंडिया कंट्री में बहुत ज़्यादा ही है. ओके, नेक्स्ट, साइज ऑफ बिजनेस. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वेल, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज. अगर आपके घर पे एक स्मॉल साइज डॉगी है, स्मॉल साइज, उसको खाना भी कम लगेगा.
एक एकदम बिग साइज डॉगी है, तो प्लीज अंडरस्टैंड वो तो इंसान से ज्यादा खाना खाएगा. Size matters. Very very important. Size matters. The bigger the car, the more the petrol that car is going to consume, because petrol ज़्यादा यूज़ होता है जब वो पेट्रोल, वो जो गाड़ी का वज़न है, साइज है, वो ज़्यादा है. तो क्वाइट सिंपल एज दैट. सेम लिंक यहाँ पे भी है कि जो बिजनेस का साइज होता है, ओके, that determines the fixed capital requirement. If the factory is going to be big, if the manufacturing is going to be big, then orders are going to be big. तो फिर automatically भैया पैसा आपको ज़्यादा लगेगा. Okay, तो the first, second, size. Next, scope of business. What do you mean by scope of business? देखिए, जहाँ पे बिजनेस लार्ज स्केल पे किया जाता है, द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड पॉइंट आर ऑलमोस्ट द सेम. इफ द बिजनेस इज बिग, ऑटोमेटिकली द मनी दैट यू रिक्वायर इज ऑल्सो बिग. अगर गाड़ी, बाइक खरीदना के इरादा है और वो बाइक बड़ी कंपनी का है, वो गाड़ी बड़ी कंपनी की है, तो फिर पैसे भी आपको ज़्यादा लगेंगे. देयर आर बिजनेस फर्म्स विच आर फॉर्म्ड to carry on production or distribution on a large scale. तो you are not restricted to a Bombay, a Maharashtra, a India. आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड में बेचा जा सकता है. तो आई रिपीट माई सेल्फ, इट क्रॉसेज बाउंड्रीज. गरीब से गरीब कंपनी, कंट्री, और अमीर से अमीर कंट्री. वेल, टू बी फ्रैंक, व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन, ये एक मुद्दा है दैट एवरीबडी इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, इन द वर्ल्ड requires. So the Serum Institute of India जो पुणे बेस्ड है, SII, उनके लिए तो पूरे, इनफैक्ट उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप लोगों को दिन में 20 लाख 20 लाख वैक्सीन के डोजेस चाहिए तो पैसे तो लगेंगे भैया, क्योंकि हमको नया प्लांट, नया मशीन, नया ऐसा वैसा सब सेटअप करना पड़ेगा. सो दैट इज वन थिंग. स्कोप ऑफ बिजनेस, इरादा आपका क्या है. ओके, नेक्स्ट, extent of lease or rent. Now obviously what do you mean by extent of lease or rent? आप अगर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ओके, तो उसके लिए जो whatever assets you require, ओके, वो एसेट आप खुद खरीदोगे कि उसको भाड़े पे लोगे. हे, वेरी मच पॉसिबल. इफ यू आर मैक्सिमम एयरलाइंस, ओके, वेदर वो गो एयर हो, इंडिगो हो, जेट एयरवेज बंद हो गया था, जल्दी ही शुरू होने वाला है. सो ऑल ऑफ दीज, विस्तारा, ओके, जो टाटा कंपनी चलाती है, ऑल ऑफ दीज एयरलाइंस, मेनी ऑफ दीज एयरलाइंस, वो जो एयरक्राफ्ट को है ना, दे डोंट बाय, बिकॉज फर्स्टली वन एयरक्राफ्ट इज वेरी कॉस्टली. दे टेक इट ऑन लीज. लीज का मतलब लंबा रेंट, छोटा रेंट नहीं. छोटा रेंट 2-3 महीने का होगा. They take it on lamba rent. Lamba rent मतलब they take it from a particular factory, a particular seller, and they tell के for 9 years, for 19 years, for 20 years, we will use this particular aircraft. And every month उनको lease भरना पड़ता है. It's like a rent that they have to pay. But then जो lease भरना है, that money is less. अगर पूरा asset खरीद लेना है, तो उसका पैसा आपको ज़्यादा लगेगा. तो if you are someone जो भाड़े पे एसेट लेगा, लीज पे लेगा, खुद नहीं खरीदेगा, तो फिर आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होगा. ओके, सो दैट इज द फंडा. लीज पे लोगे कि रेंट पे लोगे कि खुद से आप खरीदोगे. नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वेल, यू कैन बी अ कंपनी जो एक मोबाइल फोन बनाती है. ओके, मैं ज़्यादा करके मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल इसके लिए देता हूँ बिकॉज टुडे इन 2021 एंड इन अ लॉट मेनी ईयर्स टू कम, दिस इज़ वन डिवाइस जो आपके पास है और आपकी 360 डिग्री सबके पास है. सो इट्स important that you understand the different aspects of a mobile phone. If you are a company that is going to make a mobile phone, you have to worry about what? A lot of things. मोबाइल फ़ोन आता तो इतना ही है, एक हाथ के अंदर फिट हो जाता है, बट उसके अंदर दे कैन बी अराउंड 1000 to 2000 components, very minute. Now if you are someone, example, okay,
Reliance Jio is going to launch a Jio phone. It will be Android based. काफ़ी सस्ता रहेगा, आई थिंक सो कहा गया है कुछ 1500 का होगा. Now 1500 का Android phone is very good. But if you are someone, आपको ऑर्डर मिला, जियो कंपनी से आप हमको 10 लाख मोबाइल फ़ोन बना के दो, सो यूल बी वेरी हैप्पी. बट देन 10 लाख मोबाइल फ़ोन 4 महीने में कैसे बना दूंगा? 4 महीने में इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो आप क्या करोगे? आपको मेन कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप उसके सब कॉन्ट्रैक्ट दूसरों को दोगे. तो यू विल टेल अनदर कंपनी, एक काम करो ना, आप मेरे को स्क्रीन बना के दो. अनदर कंपनी, एक काम करो ना, आप मेरे को प्रोसेसर बना दो, आप मेरे को मदरबोर्ड बना के दो, आप मेरे को रैम बना के दो, आप मेरे को कैमरा बना के दो. एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. एनी कंपनी, इवन दी बेस्ट एप्पल कंपनी, दे डू नॉट मैन्युफैक्चर. इनफैक्ट एप्पल कंपनी खुद का कुछ नहीं बनाती है, वो सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर पे ध्यान देती है. बाकी उनका जो मोबाइल होता है वो दुनिया में उनके पास में दे हैव गॉट सो मेनी वेंडर्स जो एक एक पुर्जा उनको बेचते हैं. देन दे हैव गॉट एन असेंबलर, ओके, फेमसली कॉल्ड एज फॉक्सकॉन. ओके, एप्पल कंपनी के लिए फॉक्सकॉन कंपनी ये सारे पार्ट्स लेती है, ऐड जोड़ के एक मोबाइल फ़ोन उनको उनके हिसाब से बना के देती है. सो वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर सब काम आप करोगे तो फिर पैसा भी ज़्यादा लगेगा. अगर आप काम बांटोगे तो ऑटोमेटिकली, अगर पूरा वजन आप लोगे तो फिर लोड भी तो उठाना पड़ेगा. बट अगर आप 10 लोगों में काम बांट दोगे तो लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. सो सब कॉन्ट्रैक्ट इफ यू आर गोइंग टू डू, इट इज अ गुड आइडिया. नेक्स्ट, acquisition of old assets. See, if you start your business and you are somebody who says नहीं भाई हमको तो न्यू एसेट्स ही चाहिए, ओनली न्यू, ओल्ड वाला मैं खरीदूंगा ही नहीं, तो प्लीज आप इतना भी अंडरस्टैंड कर लो कि भाई महंगा गिरेगा. ओल्ड एसेट से काम चल सकता है. एग्जाम्पल, मेरे पीछे ये किचन इक्विपमेंट है. ओके, दीज किचन इक्विपमेंट्स आर नॉर्मली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील. तो अगर दूसरे किसी का होटल बंद हो चुका है और आपको उसके होटल के किचन इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं सस्ते में, तो क्यों नहीं, आप खरीद लीजिए. आपको उतना पैसा कम लगेगा, आपका इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में उतना कम होगा, विच इज़ गुड. क्योंकि जितना पैसा आप कम लगाओगे उतना कॉस्ट आपका कम होगा, उतना पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट ऊपर जाने के लिए. सो क्वेश्चन मार्क, आर यू विलिंग टू बाय ओल्ड एसेट्स? काम हो जाएगा, इतना ही क्या है, वो सेकेंड हैंड होगा. ओके, ऐसा रहता है. एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन अ कंसेशनल रेट. व्हाट डू यू मीन बाय कंसेशनल रेट? देखो भाई, सेम, या तो आप ओल्ड एसेट्स खरीद सकते हो, या तो आप एसेट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से, ऐसे कंपनी से खरीद सकते हो जो आपको थोड़े सस्ते में दे. आई रिपीट, द वर्ड कंसेशनल रेट्स मीन्स व्हाट? अगर ये OLX पे आप जाओ, इंडिया मार्ट पे आप जाओ, एंड लाइक दैट मेनी वेबसाइट्स. ओके, देयर आर मेनी एसेट्स जो कुछ टाइम के लिए यूज़ हुए हैं एंड देन उसके बाद में उसको यूज़ फॉर वट एवर रीजन्स नहीं किया गया है, उसको सस्ते में बेचा जा रहा है. नॉट अ प्रॉब्लम. थोड़ा आपको मेहनत और करना पड़ेगा, थोड़ा पूछताछ, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ इंक्वायरी, यू हैव टू टेल 100 ऑफ योर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट दिस एसेट. क्या आपको कहाँ पे दिखता है ये सस्ते में मिल रहा है आपके आसपास में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके घर के इधर उधर? थोड़ा प्लीज़, थोड़ी मेहनत लगेगी. बट इफ़ यू गेट इट एट कंसेशनल रेट्स देन व्हाई नॉट. आपका पैसा उतना, आपका फिक्स्ड एसेट उतना कम लगेगा. नेक्स्ट, international conditions. What do you mean by international conditions? Well, if you're in India, it is national. If you go outside India, it becomes international. Okay, so what does this say? See, when you are an MNC, a multinational corporation, there are many factors that determine your performance. And because you are a conglomerate, you are a big company, आप सिंगापुर में भी हो, आप श्रीलंका में भी हो, आप पाकिस्तान में भी हो, आप बांग्लादेश में भी हो, आप इंडिया में भी हो, आप US में भी हो, आप रशिया में भी हो, you can be in multiple countries. Now, because you are in multiple countries, you always look at the social climate, you always look at the economic climate. There are many companies जो ऐसे countries में situated होते हैं जहाँ पे what do you call a war-like situation is very common. A war-like situation, okay? And the moment फिर कर्फ्यू होता है, जैसे हम लॉकडाउन में, वैसे something like लॉकडाउन हो जाता है. Now, if it is a war-like situation, what does this company do? Well, war हो ना हो, लोगों को तो खाना है.
So when the company thinks, okay, there is a possible that there can be for some time a very uncomfortable situation, a very war like situation, okay, or a covid like situation, जहाँ पे ये बंद करो वो बंद करो, तो एक काम कर लेते हैं, हम ज़्यादा क्या खरीद लेते हैं, मटीरियल खरीद लेते हैं. Okay, so it says about, for example, companies expecting war may decide to invest large funds in fixed assets before there is shortage of material. तो I repeat, they will अपना खुद का मशीन, और वो कुछ मशीन में भी भाड़े पे भी लेगी या मशीन खरीद लेगी, ताकि वो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ाकर माल प्रोडक्ट्स को बनाकर रख सके, so that if anything goes wrong to the economy or the country, they can keep on supplying whatever is their product. Okay, so that is one thing, international conditions. Next, trend in economy. Well, what is nowadays trend? Okay, this thing called as AI, artificial intelligence. So everything, your WhatsApp is based on artificial intelligence, your Snapchat, your Instagram, TikTok, so famous. Well, thoda come in India right now, but extremely famous. You get kind of addicted to TikTok. Okay, I have tried it at least once, and I could not stop to scroll. Okay, scroll, and in maybe around maybe 10 minutes, the app अंडरस्टूड कि मुझको क्या पसंद है, तो वो मेरे पसंद का ही 15-15 सेकेंड के जो वीडियोस बनते हैं, ओके, टिकटॉक के ऊपर, वही मेरे सामने मुझको दिखा रहा है. सो आई रिपीट माई सेल्फ, दैट इज टूडेज ट्रेंड इन इकोनॉमी, AI. सो देर आर many कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे देर आर सो मेनी स्मार्ट प्रोडक्ट्स जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये AI अंदर डाला जा रहा है. सो यू हैव गॉट स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, स्मार्ट कार्स. ओके, सो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर इज सो स्मार्ट दैट इट नोज कि आपके फ्रिज के अंदर या फ्रिज के अंदर पता चल जाता है कि दूध खत्म हो रहा है, दूध को ऑर्डर करना है, ये खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, उसको ऑर्डर करना है. very important. So I repeat myself, above what does it say? You see, if the future of the company is anticipated to be bright, it gives a green signal to business entrepreneur, that is the one who has started the business, to carry out all sorts of expansion plans, because the company is doing so well. Okay, it keeps on expanding. In India there is a company by the name of Ola, OLA, वेरी फेमस. ओके, वो उबर को टक्कर देती है एज फार एज रेंटल ऑफ कार्स आर कंसर्न. ओके, नाउ इट हैज एक्सपांडेड एंड इट हैज गॉन टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, UK. तो ओला का जो कॉन्सेप्ट है, जो ऐप है, वो वहाँ पे भी चलता है. एंड राइट नाउ ओला इज मेकिंग अ 2-wheeler विच इज एन इलेक्ट्रिक 2-wheeler. इट इज एक्सपांडिंग. Okay, it is basically a company which started completely on AI, artificial intelligence, but now it has expanded. So उनको पैसा तो ज़्यादा लगेगा, and that is the reason it is taking money from many investors. Trend in economy, के इकोनॉमी में जो चल रहा है ना, और आपकी कंपनी का अगर वो ट्रेंड में भविष्य उज्जवल है, आप एक्सपांड करोगे और आपको पैसा ज़्यादा लगेगा. नेक्स्ट, population trend, a very important, कि the population in a country is your customer. population जो पसंद आता है population को, okay, it makes sense कि कोई भी कंपनी वो population को सर्व कर रही है, तो उस तरीके के प्रोडक्ट को बनाए, उस तरीके के प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाए, क्योंकि population का ट्रेंड तो चेंज हो सकता है, पर the quantity of population, okay, India, the whole world is looking at India as a market, very important, as a market. So there are many automobile companies जो US के हैं, UK के हैं, okay, but उनका market saturate हो सकता है. That means they have sold their cars to many people in US. So now they are wondering, where do we sell? Well, you can come to India, because in India the market is big. You still, मतलब you can't count the number of customers. हमारा population हमारी ताकत है, in a way. Okay, so above it says
व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट, जो हमारे कंट्री में होता है, ओके, और होता आ रहा है, सर्टन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड बिजनेस. यस, बराबर है. वेदर वो मोबाइल का मैन्युफैक्चरर हो, वो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर हो, ओके, वेदर वो गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरर हो, बिकॉज देन दे रिक्वायर मोर मनी, because they are going to serve a population which is so huge. Okay, so population अगर कम होगा for whatever reasons, कम होगा तो automatically production भी कम हो जाएगा and the money requirement will also reduce. Next, consumer preferences. What do you mean by that? Well, quite simple. We are consumers. I am a consumer, you are a consumer, and the companies are constantly studying consumers. हमारे ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं. जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, वो पहले एक व्हाट्स द वर्ड दैट आई एम लुकिंग आउट फॉर, दे मेक अ सैम्पल ऑफ कस्टमर्स, 100 customers, 50 customers, and they give that product to those customers and they take a feedback review. अगर वो खाने का था तो मतलब आपको टेस्ट कैसे पसंद आया, क्या उसका फ्लेवर आपको पसंद आया. अगर वो टेक्नोलॉजी था तो what features did you like, okay, would you like more features to come into this particular product. So I repeat myself, all the tech companies, Facebook, Instagram, Twitter, Jio, okay, one of the very big Indian companies, they are always constantly paying attention to their customer, क्योंकि customer is king. एक मार्केटिंग चीज़ तो आपको पता ही है. तो दे आर कॉन्स्टेंटली कि कस्टमर को क्या पसंद है, उसका प्रोडक्शन वो ज़्यादा करेगी एंड अकॉर्डिंगली उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा. देन लास्ट वन विच इज़ वेरी ट्रू, कॉम्पिटिटिव फैक्टर. इंडिया इज इन इकोनॉमिक्स, नो, यू विल लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स. इन दैट यू विल लर्न कि देर इज इन इंडिया देर इज अ मार्केट विच इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, especially in the telecom industry, telecommunication, mobile calls का industry. Okay, so पहले there used to be Vodafone, अभी भी है, Airtel अभी भी है, but there used to be many other service providers. There were many other companies. You had a lot of options. 10 तक थे, अभी मुश्किल से 3 या 4 बाकी है. क्यों? क्योंकि द मोमेंट 4-5 साल पहले जियो आया तो जियो ये लेकर आया, what is that, 4G, और 4G का स्पीड लेकर आया, which was very unimaginable, okay, because the other companies were not on 4G, they barely were on 3G. 4G तो उन्होंने सोचा भी नहीं था. हाँ, हुआ क्या, कॉम्पिटिटर आया जियो, जिसने 4G का टेस्ट सबको दे दिया. हाई स्पीड, 1 GB, 2 GB, 5 GBs a day, and people started to like it. So Airtel, which was an old technology, had to shift fast to 4G. Okay, Vodafone had to shift. Those companies that could not shift, they closed down. हाँ, तो अगर आपको competition face करना है, अभी वो 4G है, very soon we already have in the market 5G mobiles, and maybe within a year we will have a 5G mobile reception, जहाँ पे आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे 4G दिखता है, you will get a 5G. There will be even faster speeds. So Jio has already said हमारा 5G पे 4G से आराम से चेंज होगा, but I'm not very sure Airtel कर पाएगा कि नहीं, Vodafone कर पाएगा कि नहीं, but they have to, क्योंकि if they want to survive they have to face the competitor, and if the competitor Jio is giving a 5G service at a certain price, इतना डेटा तो उनको भी देना और उनको उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा. और जब मोमेंट वो अपने टेक्नोलॉजी को चेंज करे, दे रिक्वायर मनी, दे रिक्वायर फिक्स्ड कैपिटल. इन द होल आंसर वी हैड 12 पॉइंट्स, बिकॉज दीज आर so many points. Okay, there is a possibility कि आप सब पॉइंट्स ना याद रख पाओ. सो व्हाट एम आई डूइंग, आपको लास्ट पॉइंट याद है, कॉम्पिटिटिव फैक्टर. मैंने उसमें क्या बोला, यू कांट बी स्लॉपी. स्लॉपी का मतलब क्या है, यू कांट बी केयरलेस, कि दुनिया बदल रही है, हमने हमारे आंखों पे पर्दा डाल रखा है. नो, बिकॉज इफ यू आर केयरलेस, इफ यू आर स्लॉपी, स्लो, क्लमजी, तो क्या होगा,
आपका नुकसान होगा. सो दीज वर्ड्स, मैं ऐसे वर्ड्स क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दे विल हेल्प यू रिमेंबर the 12 points that you just now seen on the board behind. So, carelessness creates sloppiness. Some of you or many of you would be, sir, that doesn't make a lot of sense. Please don't search sense in this. Okay, वो मत, ये grammatically perfect नहीं है, ये मैं खुद आपको बोलता हूँ. But I am just trying to give you a phrase or a word which will give you all those 12 points. So at least maximum of the 12 points. So hold on. Carelessness का C आपको देगा competitive factor, जिससे हमने अभी स्टार्ट किया. Creates का C आपको देगा concessional rate. This is not in the order, but this will give you or remind you maximum of the 12 points. All the 12 points, but I hope you remember all. Sloppiness, ये आपको सामने दिख रहा है ना, will remind you what? The size of the business determines the fixed capital requirement, the decision of lease or rent. भाड़े पे ले, खुद से खरीदे, ओके. ओल्ड एसेट्स, आपका काम चलाएगा कि नहीं. ओल्ड एसेट्स खरीदोगे तो पैसा कम लगेगा. पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है लिटिल तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा भी, आपको मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा करना पड़ेगा. कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कि आज कंज्यूमर को क्या पसंद है, कल क्या पसंद है. इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डज दैट मीन कि इंटरनेशनली व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन डिफरेंट कंट्रीज. कहाँ पे युद्ध होगा कि नहीं, तो जल्दी जल्दी वहाँ के लिए प्रोडक्शन आप बढ़ा दो तो आपको पैसा भी ज़्यादा लगेगा. द नेचर ऑफ योर कंपनी, ओके. The trend in the economy also keeps on changing. The subcontract concept, मतलब are you willing to give your main job as parts to another company, ताकि आपके ऊपर का लोड कम हो जाए. अगर आप सब काम करोगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा लगेंगे. And lastly the scope. तो there are SSS, there is size, there is subcontract and there is scope. Carelessness creates sloppiness. Again, I am extremely sorry because there is a possibility. So this doesn't make any sense. It makes a little sense, but not a lot. It makes a lot of sense when it comes to reminding you the 12 points. And that's the basic mudda of this particular page. So in your textbook, ना आप ये लिख के रख सकते हो as a code word. Okay. So by the time your examinations approach, right now it's the beginning of the academic year. There will be a middle and there will be an end. You have gone through around 6 to 7 subjects, so many chapters, so many answers. तो याद रखना थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो these silly code words are only going to help you remember as many as maximum points as possible. Okay, so आज हमने ध्यान दिया फिक्स कैपिटल और उसके फैक्टर्स पे. नेक्स्ट टाइम हम ध्यान देंगे वर्किंग कैपिटल और उसके फैक्टर्स पे एंड कनेक्टेड पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर. आई होप ऑल ऑफ दिस दैट हैज़ बीन explained today to you, whether it is each point or whether it is the code word, has been understood by you. अगर आपको ये समझा है then please do like the lecture video. आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं हुआ है तो, बेल आइकन दबाइए अगर नहीं हुआ है तो, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेयर कीजिए. शेयर द न्यूज़ ऑफ दिस चैनल, शेयर द chapters that are being taught on this channel, share the subjects that are being taught on this channel. Instagram से शेयर कीजिए, WhatsApp से शेयर कीजिए, Facebook के बुक के पोस्ट से शेयर कीजिए. बट प्लीज़ आई एनकरेज यू, share this information to as many of your friends as possible. Everybody in your college should know about Stevenson Makes It Easy. I don't guarantee that the teaching is top notch, but I am always aspiring. I'm trying my best to keep it top notch. Okay, so again, do reminding you that there is a comment box which is खुला दरवाज़ा. अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कीजिए, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो. अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट हमें देखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो. हम पूरी कोशिश करेंगे वो इम्प्रूवमेंट वीडियोस में लाने की.
टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.